IMF کو بانی PTI کا خط 28 فروری کو ملا۔ نمائندہ IMF ایسٹر پریس کی تصدیق، کہا بانی PTI کا خط پاکستان کے قرض پروگرام سے متعلق ہے۔ IMF بین الاقوامی ادارہ ہے جس کا مینڈیٹ معاشی مسائل تک محدود ہے۔ IMF مقامی اور سیاسی مسائل پر تبصرہ نہیں کرتا۔ ہم ادارہ جاتی معاشی استحکام اور ترقی کے لیے انتخابی تنازعات کے شفاف اور پرامن حل کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، نمائندہ IMF کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس بارے میں۔ IMF مقامی اور سیاسی مسائل پر تبصرہ نہیں کرتا، نمائندہ IMF کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ادارہ جاتی معاشی استحکام اور ترقی کے لیے انتخابی تنازعات کے شفاف اور پرامن حل کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ IMF نے $3 ارب کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کی تکمیل کو ترجیح قرار دے دیا ہے۔ اور پاکستان کی نئی کابینہ کی تشکیل کے بعد دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے مشن بھیجنے کا عندیہ دیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے ارشاد انصاری۔ IMF کا نئی کابینہ کی تشکیل کے بعد دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے مشن پاکستان بھیجنے کا عندیہ۔ IMF نے $3 ارب کی سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کی تکمیل کو ترجیح قرار دیا ہے۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ میں IMF کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جیولی کوزیک نے پاکستان کی سیاسی صورتحال پر تبصرے سے گریز کیا اور کہا کہ پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ پالیسیوں پر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ پاکستانی عوام کی بھلائی اور معاشی استحکام کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ جیولی کوزیک کے مطابق موجودہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا معاہدہ اپریل 2024 میں ختم ہو رہا ہے، جس کے تحت پاکستان کو $1.9 ارب مل چکے ہیں۔ ڈائریکٹر کمیونیکیشن IMF نے مزید کہا کہ نگران حکومت نے مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے سخت مالیاتی پالیسی برقرار رکھی۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کے ساتھ مالی اہداف پر سختی سے عمل کیا گیا۔ توانائی شعبے میں ٹیرف میں بروقت ایڈجسٹمنٹ کو لاگو کیا گیا۔ ارشاد انصاری، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ سندھ ہائی کورٹ کا صدارتی الیکشن میں سندھ اسمبلی کی 3 مخصوص نشستوں کو کاؤنٹ نہ کرنے کا حکم۔ سندھی اتحاد کونسل کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری، الیکشن کمیشن اور دیگر سے 28 مارچ کو جواب طلب کر لیا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس بارے میں، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس حوالے سے 28 مارچ کو جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے مطالبے پر سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے گئے۔ نون لیگی سینیٹر مشاہد حسین سید کا بانی PTI کی رہائی اور سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے کا مطالبہ۔ سینیٹر اسحاق ڈار نے سینٹ اجلاس میں مساق معیشت کی پیشکش کر دی ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے مطالبے پر سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری۔ سینٹ کا ہنگامہ خیز اجلاس، ڈپٹی چیئرمین سینٹ مرزا محمد افریدی نے سیکرٹری سینٹ کو PTI کے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ PTI ارکان نے ڈیسک بجا کر ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو خراج تحسین پیش کیا۔ اعجاز چودھری صاحب کا پروڈکشن آرڈر جاری کریں پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے۔ ایوان بالا کا اجلاس ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی زیر صدارت ہوا۔ سینیٹر اسحاق ڈار نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے مساق معیشت کی پیشکش کر دی۔ لیٹس کم ٹوگیدر، ایٹ لیسٹ اکنامک ایک روڈ میپ بنا لیں، ایک چارٹر آف اکانومی سائن کر لیں۔ لیٹ دی عوام بھی وٹنس، لائک چارٹر آف ڈیموکریسی میں وٹنس تھی پاکستان کی پوری عوام، اس کو سائن کریں اور اس کو ڈیریلمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ سینیٹر علی ظفر نے مطالبہ کیا PTI کی خواتین قیادیوں کو آج کے دن رہا کیا جائے۔ That Senator Ijaz Ahmed Khan Chaudhry's presence is indeed necessary during the current session, especially جب کل کے دن presidential election ہو رہا ہے سر، the vote تو انہوں نے کرنا ہی ہے، یہ ان کی constitutional right ہے and we cannot have one of our senators sitting in jail۔ اجلاس کے دوران مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد حسین سید نے بھی ایک بڑا مطالبہ کر دیا۔ میں نے سب سے پہلے ڈیمانڈ کیا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، وہ سیاسی قیدی ہیں اینڈ اٹ شوڈ بی اکراس دا بورڈ۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک نیا چیپٹر آ گیا ہے 8 فروری کے بعد، اور اس نئے چیپٹر میں وی نیڈ اے ہیلنگ ٹچ۔ جو PTI کی جو ریزروڈ سیٹس بنتی ہیں، اسپیشلائز سیٹس، ان کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ سینٹ میں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی، جس میں کہا گیا حکومت خواتین کی معیشت میں شمولیت کے فروغ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ سینیٹر مشتاق نے مطالبہ کیا فلسطینی خواتین کے قتل اور ان پر مظالم کو بھی قرارداد میں شامل کیا جائے۔ خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔
पंजाब असम्बली में मखसूस नशस्तों पर हलफ बर्दारी, अपोजिशन का शदीद एहतजाज। स्पीकर मलिक अहमद खान ने 24 मखसूस नशस्तों पर नौमुंतखब अरकान से हलफ लिया। पंजाब असम्बली में बानी पीटीआई की रिहाई की करारदाद पेश। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद और कौमी हीरो करार देने की करारदाद मंजूर कर ली गई। पंजाब असम्बली के हंगामा खेज इजलास में खवातीन और अक़लियती 24 मखसूस नशिस्तों पर नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। मैं इस्लामी नजरिया को बरकरार रखने के लिए रोता रहूंगा, जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। हल्फ बर्दारी के दौरान अपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव करके एहतजाज किया और नारेबाजी करते रहे। डाइस से नीचे तक अपने बेंचेस में आ जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब अहमद खान ने हल्फ बर्दारी की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। इन्होंने इसलिए कि फटाफट हलफ दिलवा के इनको कल वोट दिलवाया जाए, जिसकी हम भरपूर मजम्मत भी करते हैं। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपोजिशन की जानिब से अरकान के हल्फ रोकने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी शहीद और कौमी हीरो करार देने की करारदाद पंजाब असम्बली ने कसरत राय से मंजूर कर ली। साथी रिपोर्टर अफजाल तालिब के साथ मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट का सदारती इलेक्शन में सिंध असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तों को काउंट न करने का हुक्म जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस। इलेक्शन कमीशन और दीगर से 28 मार्च को जवाब तलब कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट का सदारती इलेक्शन में सिंध असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तों को काउंट न करने का हुक्म। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन और दीगर से 28 मार्च को जवाब तलब कर लिया गया है। खबर आपको दें, इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट का सदारती इलेक्शन में सिंध असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तों को काउंट न करने का हुक्म। अहम खबर, महमूद अचकजई का सदारती इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा। सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। महमूद अचकजई ने खत में कहा, कौमी और सूबाई असम्बली की तादाद मुतअद्दिद मखसूस नशिस्तें अभी खाली हैं। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने तक इलेक्शन मुलतवी किया जाए, इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। महमूद अचकजई का सदारती इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा किया गया है। बात करते अपने नुमाइंदे उसामा इकबाल हमारे साथ हैं। जी उसामा, इससे मुतालिक मजीद बताइएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो मुश्तरका उम्मीदवार थे सदारती इंतखाबात के लिए महमूद खान अचकजई, उन्होंने जो इंतखाबात हैं उनको मुलतवी कराने का मुतालबा कर दिया है। सदारती उम्मीदवार जो महमूद खान अचकजई हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि कौमी और सूबाई असम्बली की मुतअद्दिद जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी खाली हैं और इसलिए इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मुकम्मल नहीं है। तो जब तक मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर लिए जाए। जी उसामा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी से जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए इमदाद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जब तक मुतासरीन घरों में आबाद नहीं हो जाते हम चैन से नहीं बैठेंगे। शुमार में जो लोग टैक्स उनको देना चाहिए वो रकम इससे कहीं ज़्यादा है और जो कि ख़जाने में नहीं आती और वो टैक्स चोरी होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुज़फ़्फ़राबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़फ़्फ़राबाद में बारिशों और बर्फबारी से मुतासर अफराद से मुलाकात की और मुख्तलिफ हादसात में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान किया। जो जख्मी हैं उनके लिए हमने 5 लाख रुपया फिक्स किया है। उसमें ये कोई कैद नहीं है कि किसको कम चोट लगी है, किसको ज़्यादा चोट लगी है। वज़ीर आज़म ने मुकम्मल तबाहशुदा मकानों के मुतासरीन और जुज़वी तबाह होने वाले घरों के मुतासरीन के लिए भी इमदाद का ऐलान किया। जो मकानात हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं उनको वफाक की तरफ से 7 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा और जो जुज़वी मकानात तबाह हुए हैं उनको 3.5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें चौधरी अनवारुल हक ने शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि बलूचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। पाकिस्तानी अवाम को बलूचिस्तान के इन बहादुर लोगों पर फख्र है जो तमाम मुश्किलात के मुकाबले में डटे रहे। मजीद बता रहे हैं खालिद महमूद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के जिला अवारान का दौरा। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। दौरान ब्रीफिंग सूबे की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की और ज़राअत की सलाहियत में पाक फौज की जानिब से की जाने वाली कोशिशों के बारे में बताया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुकामी अमायदीन, किसानों और शहदा के ख़ानदानों से बातचीत की। बातचीत में आर्मी चीफ ने ज़राअत की अहमियत और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए फ़ौज के अज़म पर जोर दिया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि किसानों को हर किस्म की ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाएंगी, जिनमें आसान ज़रूरी कर्ज़ों की फराहमी, बीज, खाद, सोलर ट्यूबवेल और माहिरीन ज़राअत की रहनुमाई शामिल है, ताकि किसान अपनी ज़मीनें काश्त करके मुल्क की तरक्की में शराकतदार बन सकें। बाद में आर्मी चीफ ने कैडेट कॉलेज आवारान का इफ्तिताह किया। उन्होंने बलूचिस्तान में एक और कैडेट कॉलेज के क़याम को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज मुतल्लिका सिविल महकमों के साथ मिलकर बलूचिस्तान में तरक्याती और इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखेगी। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन और खुशहाली के लिए बलूचिस्तान के अवाम की हिमायत में अपनी खिदमात पेश करते रहेंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तहनीती पैगामात पर चीनी सदर और वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुझे मुबारकबाद देने के लिए प्यारे भाई चीनी वज़ीर आज़म ली की चियांग का शुक्रिया। शहबाज शरीफ पाकिस्तान अपनी हमा मौसमी स्ट्रेटेजिक को कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत बनाने और सी पैक के लिए चीन के साथ काम जारी रखेगा, ये कहा गया है शहबाज शरीफ की जानिब से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तहनीती पैगामात पर चीनी सदर और वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। दूसरी जानिब मुज़ाहिर अली अकबर नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार। 33 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली राय जारी। तफसीली राय के मुताबिक मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ तमाम इल्ज़ामात साबित, ज़ाती फ़ायदे उठाने में मुलव्विस करार। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब, मजीद क्या कहा गया काउंसिल की राय में? देखें, 33 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली राय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने तहरीर की है। इस राय कौंसिल ने एक तो ये कहा है कि मुज़ाहिर नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, उनके नाम के साथ जस्टिस या जज भी नहीं लिखा जा सकता। और इसके अलावा इस तफसीली राय में कौंसिल ने ये कहा है कि मुज़ाहिर नकवी जो हैं वो ज़ाती फ़ायदे लेते रहे हैं। मुज़ाहिर नकवी जो ज़ाती फ़ायदे हासिल करके जो तहाइफ और जो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बनाई, उन्होंने इस हवाले से वजाहत नहीं दी। मुज़ाहिर नकवी ये वजाहत देने में नाकाम रहे कि वो ये प्रॉपर्टीज़ किस तरह से खरीदते रहे। कौंसिल ने अपनी राय में ये भी कहा है कि मुज़ाहिर नकवी जब जज बने सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने महज 2 साल में 4 प्रॉपर्टीज बनाई, जिनमें 3 प्लॉट्स इस्लामाबाद में थे और एक रावलपिंडी का। बहुत शुक्रिया जहांजेब आपका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पब्लिक सर्विस कमीशन में ख़वातीन का कोटा 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया। छोटे कारोबार करने वाली ख़वातीन को बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब से खिताब पे क्या कहा, जानते हैं तालिब फरीदी से। ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था, इनका वज़ीर आला बनना पाकिस्तान की हर माँ, बहन, बेटी के लिए एजाज़ है। और पंजाब ने एक प्रेसिडेंट सेट किया है कि द फर्स्ट एवर वुमेन चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान की भी, पंजाब की भी, तो अपनी एक बेटी को उन्होंने इस कुर्सी पे बिठाया है, अपनी एक बहन को उन्होंने इस कुर्सी पे बिठाया है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था, उन्हें भी पार्टी में जगह बनाने के लिए 12-13 साल बहुत मेहनत करना पड़ी। तालिब फरीदी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर ख़वातीन की जानिब से रैलियों का इनेकाद, जिसका मकसद ख़वातीन की समाजी, सियासी और इक़्तिसादी जद्दोजहद को ख़राज तहसीन पेश करना है। ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक, इसी हवाले से आपको बता रहे हैं कि ख़वातीन की आज बड़ी तादाद रैलियों में शरीक है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर ख़वातीन की जानिब से रैलियों का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद ख़वातीन की समाजी, सियासी और इक़्तिसादी जद्दोजहद को ख़राज तहसीन पेश करना है। और इन रैलियों में ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत भी की है। आसिफ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी आसिफ महमूद, आगाह कीजिएगा।
جی آج 8 مارچ کے موقع پر جب پوری دنیا میں آج خواتین کا جو وہ عالمی دن منایا جا رہا ہے تو لاہور میں بھی خواتین مارچ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ یہ عورت مارچ جو ہے وہ لاہور پریس کلب سے شروع ہوا تھا جس میں بڑی تعداد میں خواتین مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین جو ہے وہ شریک ہیں اور ان کے جو ایک روایتی مطالبے ہیں ان کے ساتھ آج یہ مارچ جو وہ ایجوٹن روڈ پر ہوا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ فلیکٹس ہوٹل کے سامنے پہنچی ہے۔ اس دفعہ خاص بات یہ بھی تھی کہ شرکا جو تھے عورت مارچ کے انہوں نے کشمیریوں اور مظلوم فلسطینیوں کی آزادی کی بھی بات کی ہے اور یہ بھی پوری دنیا سے مطالبہ کیا ہے کہ کشمیریوں کو اور فلسطینیوں کو جو وہ آزادی ملنی چاہیے۔ بڑی تعداد میں سول سوسائٹی کے لوگ، مختلف یونیورسٹی کی طالبات اور جو سرکردہ خواتین رہنما ہیں وہ اس مارچ کے ساتھ شریک تھیں۔ لاہور پریس کلب سے یہ مارچ جو ہے وہ شروع ہوا تھا اور اگر ان کی سیکورٹی کی بات کی جائے تو پنجاب پولیس کی طرف سے بھرپور سیکورٹی بھی عورت مارچ کو جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے۔ اس وقت عورت مارچ جو ہے وہ پی آئی اے بلڈنگ کے سامنے فلیکٹس ہوٹل کے پاس یہاں پہ ایجوٹن روڈ پر پہنچ چکا اور یہاں پہ جو خواتین رہنما ہیں ان کی طرف سے مختلف ٹیبلو پیش کیے جائیں گے، تقاریر جو ہے وہ کی جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے آصف محمود، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا۔